everyone, welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya and welcome to yet another brand new video. I'm making a video after a very long time. So welcome back to my channel, and today's video is going to be a very special video because it's going to be a complete commerce guide for class 12th. So without wasting further time, let's get started with our video. So let's start with tip number 1, that is to start studying from the very start and not wait till the last 3 months to complete your syllabus. This is coming from a personal experience, and being a college student, I have done this a lot of times जहाँ पे मैं अपना syllabus last के moment के exams के लिए छोड़ देती हूँ, and I am suffering now. So I don't want you all to suffer. So please start studying from the very start. जैसे ही तुम्हारा session शुरू हुआ है, मार्च में शुरू हो गया होगा, and अभी तो जून आ गई है, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं गया है. You still have a lot of time left. सो जैसे जैसे टीचर कराती जाती है सिलेबस वैसे वैसे कंप्लीट करते जाओ. एटलीस्ट उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो तो बट एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या हो रहा है, एंड यू आर अवेयर अबाउट योर टॉपिक्स, यू आर अवेयर अबाउट हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, एंड तुम जानते हो कि उस चैप्टर में क्या करना है. बिल्कुल भी ऐसे ब्लैंक नहीं रहना है कि तुम्हें पता ही नहीं है एंड तुम लास्ट में जाके पढ़ रहे हो कि भाई ये तो कुछ नया ही दिख रहा है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. At least try to devote 1 or 2 hours daily. It's not important कि तुम 5 से 6 घंटा पढ़ो जो कि कई लोग कहते हैं. It's not necessary, but 1 से 2 घंटा भी पढ़ोगे तो you will be good to go, and end के moment में तुम्हें बहुत ज़्यादा help होगी. Moving on to the next tip, it is to not waste your time in tuitions. A lot of people might not agree with me on this, and it's absolutely okay because person to person depend करता है. I am a person जिसे घर पे बैठ के खुद से पढ़ना पसंद है, and there are a lot of students जिन्हें पसंद होता है उस environment में पढ़ना. बट इफ़ यू समवन लाइक मी जिसे घर पे बैठ के पढ़ना पसंद है, आराम से पढ़ना पसंद है, उसके लिए कॉमर्स वाला के सभी बैचेस पे चल रहा है अब तक का बिगेस्ट ऑफर, बिकॉज फिजिक्स वाला इज सेलिब्रेटिंग इट्स 5th year anniversary, एंड दिस ऑफर इज फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड इन विच you'll get up to 75% off on all their commerce batches for 2026. If you're in class 11, then they have their Uday Pro 2026 commerce batch and their Uday 2.0 2026 commerce batch. And if you're in class 12th, uske liye they have their 2 batches, which is Parishram 2.0 2026 and Parishram Pro 2026. In these batches, you will get live and recorded classes with unlimited views, weekly assignments and daily practice papers, and 24/7 doubt support. But in case you want their pro features, then you should go for their pro batches, which is Uday Pro or Parishram Pro 2026 Commerce batch, in which you'll get mentorship with PW expert faculties, which includes Disha ma'am. देखना है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा बिके कैसे. जनरली जब भी मैं प्रोडक्ट बेचने की बात करती हूँ ना, तो बच्चों के दिमाग में एक ही चीज आती है, मैम प्रोडक्ट तो बिकता है एडवर्टीजमेंट से. मतलब आप ऐसे ना सेलिब्रिटी दिखा दो कि सेलिब्रिटी ये परफ्यूम यूज करता है तो सभी लोग वो परफ्यूम खरीद. लव कौशिक सर कराया, और इन्होंने बोला 1949 में जब चाइना आजाद हो गया तो उसके बाद देखा कि यार अपने देश को अगर बहुत जल्दी तरक्की दिलवानी है ना तो देश में इंडस्ट्रीज सेट करना बहुत जरूरी है. इंडस्ट्रीज का मतलब सर चैप्टर करना ही पड़ेगा सेकंड चैप्टर करने के लिए, और ऐसे ही फिर अपन लोग लाइन से चलने वाले. तो खैर पहला चैप्टर तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से. निखिल सर ऑलवेज रिमेंबर, हालांकि इसमें तो मैंने 150 रुपये रखे हैं, एटलीस्ट 10% आपको हमेशा सेव करना है. ये आज के डेमो लेक्चर का ज्ञान है. You'll also get hard copies of books for all your subjects, and you'll also get the access to all their upcoming batches, which is a great thing. Next, in case you want personalized guidance from the expert, then you can get that by filling a form which I'll be giving in my description box. So make sure you're filling that to get personalized guidance from the experts. Lastly, I would like to say that कि I don't think you should miss this offer because इतना बड़ा offer दोबारा तो नहीं आने वाला है. And in case you want an extra discount, which everybody loves, you can use my coupon code ADY200 and get an extra off on these batches. The link to these batches will be given in my description box, so make sure that you're checking that out and don't forget to fill that form. Moving on to our next step, it is to pay attention in your class to what the teacher is saying. It is one of the most important thing that you have to keep in mind throughout your entire session कि तुम ध्यान दे रहे हो टीचर क्या बोल रही है या क्या बोल रहे हैं. You have to pay attention to each and every pointer they are making you mark. मैं सच में बता रही हूँ from my own experience, जो हमारी टीचर या मेरी सर या टीचर्स whatever जो भी वो हमें बोलते थे to note down, I used to note that down, I used to mark those pointers. And इंग्लिश में तो ये मुझे इतना हेल्प किया है. I have already uploaded
अपने पुराने साल की वीडियोस में मेरे इंग्लिश के नोट्स, इफ़ यू वांट मी टू अपलोड देम अगेन आई कैन अपलोड इट फॉर यू अगेन। वैसे तो उस ड्राइव लिंक में होंगे, यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम। तुम देख सकते हो मेरी किताब ऐसे भरी पड़ी है, लाइक माई बुक इज़ फिल्ड विद दोज नोट्स एंड लास्ट मिनट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू योर टीचर एंड वट एवर योर टीचर इज सेइंग, प्लीज़ उनकी बात सुनो। एंड अगर वो कह रही है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो उन पे स्टार मार्क करो एंड उन्हें तुम ज़रूर प्रैक्टिस करो बिफोर योर एग्जाम। The next step is to make handwritten notes for economics and business studies or even accountancy, whatever you feel like. मुझे ऐसा लगता है कि handwritten notes are very very beneficial because तुम उसे खुद से लिखते हो, तुम खुद समझ के लिखते हो and during the last minute revisions it is very helpful because तुम्हें खुद पता है कि तुमने क्या लिखा है and you can also create your own shortcuts because तुम्हें खुद से पता होगा कि तुमने हाँ ये इस वर्ड का ये शॉर्टकट बनाया है, whereas औरों के नोट्स में तुम वो चीज़ नहीं समझ पाते हो। तो handwritten notes बनाओ। तो if you want a separate video on how to make handwritten notes, then I am always here to help you. I can make a video on that as well. You would just need to drop a comment down below. Moving on to our next step is a subject wise tip for accountancy, that is प्रैक्टिस डेली। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अकाउंट्स को रोज़ प्रैक्टिस करो बिकॉज जब तुम लास्ट के मोमेंट में होंगे, जब लास्ट के 3 मंथ्स होंगे, तब तुम्हारे पास नहीं होगा बेसिक्स कवर करने का टाइम। सो इट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम एंड अभी से तुम्हें अपनी बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट इज़ चाहे क्विक रेशियो हो, करंट रेशियो हो, इनके क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ, बैलेंस शीट तो वैसे सब लोग लास्ट में कराते हैं बट बैलेंस शीट को तुम अभी से याद करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड देयर आर अदर क्वेश्चंस एज वेल जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट में या गुडविल वाले चैप्टर्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स, तो उन्हें तुम अभी से प्रैक्टिस करके चलो बिकॉज एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स याद करो या फिर इन्हें प्रैक्टिस करो। तो मेक श्योर तुम अभी से ये सारी चीज़ें करते चलो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मेरे अकाउंट्स में 95 आए थे एंड द ओनली रीज़न मेरे अकाउंट्स में 95 आए थे बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट माई क्लास 11th एंड क्लास 12th। The next thing that you have to keep in mind is to not ignore your extra subject. Okay, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो पहले बोलती थी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ लेना, अब मैं बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना। ओके, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लास्ट में ही पढ़ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी उसमें 1-2 घंटा डिवोट करना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, यू आर ऑलरेडी हैविंग एन एडवांटेज कि या तो तुम अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हो या फिर वो एक सब्जेक्ट जो तुम्हें नहीं आता है। बहुत सारे लोगों के लिए अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट होता है जो उनकी परसेंटेज बिगाड़ देता है। सो बेस्ट 4 वो लेते हैं विद देयर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट विच इज़ मोस्टली फिजिकल एजुकेशन। तो अगर तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स और एनी अदर सब्जेक्ट, मैथ्स होती है कई लोगों के पास, वो है तो मेक श्योर तुम उन पे भी ध्यान दे रहे हो बिकॉज दैट विल एक्चुअली बूस्ट योर परसेंटेज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेस्ट 4 देखते हैं लोग एंड इग्नोरिंग द होल 5 वाला चीज़। तो अगर तुम्हें अपना बेस्ट 4 अच्छा बनाना है तो तुम उस पर ध्यान दो अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे एंड उसे स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलो। दिस विल अल्टीमेटली बूस्ट योर परसेंटेज एंड मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है कि मेरी परसेंटेज जो है ख़राब रह गई थी बिकॉज मैंने अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया था विच वॉज कंप्यूटर साइंस। मेरे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, यू कैन वॉच इट इन माई रिजल्ट्स वाली वीडियो कि मेरा क्या स्कोर रहा था। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को इतना भी इग्नोर मत करना कि जहाँ पे उसे तुम्हारी परसेंटेज बढ़ानी थी वो बढ़ा ना पाए। सो पे अटेंशन टू दैट एज वेल। अगर हफ्ते में 1 घंटा भी दोगे इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज टू नॉट take these tests and assignments, half yearlies or any exam lightly. Okay, I'll just talk from the point of view of a student जो मेरे स्कूल में मैं सोचती थी कि अभी नहीं पढ़ती हूँ, बाद में पढ़ लूँगी, एंड के एग्ज़ाम में पढ़ लूँगी, एंड टिल द प्री बोर्ड्स लोग सोचते रहते हैं कि हम सीधा बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे। वेल, 1-2 चैप्टर्स के लिए हम कैसे कह सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब तुम्हारा जैसे कोई टेस्ट है, किसी चैप्टर का टेस्ट है, सपोज नेशनल इनकम का टेस्ट है इन इकोनॉमिक्स, तो ये ज़रूर करो कि तुम वो चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, प्लीज़ बिना पढ़े मत जाओ। एंड जब तक आई हैव रिपीटेड दिस थ्रू आउट माई वीडियो कि स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हुए चलो, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलो। एंड कोई भी टेस्ट है, कोई भी असाइनमेंट है जो तुम्हें टीचर होमवर्क करने के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन दे रही है, पूरी उसी सीरियसनेस के साथ करो, उसे पढ़ के करो। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ टीचर से जाके पूछो, टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो येस, प्लीज़ take your test assignments and your half yearlies, exams, everything very seriously because it will eventually help you for your final board exams. The next tip that I would like to give you is
टू कीप योर फॉर्मूलाज एंड जैसे रेशियोज का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो राइट देम ऑन वन पेपर एंड स्टिक इट टू योर वॉल और एनी अदर प्लेस जो तुम बहुत बार देखते हो, ताकि तुम एक बार देख भी लो उस फॉर्मूला शीट को तो तुम्हारा एक ऐसे क्विक रिविजन हो जाए। अगर तुम शुरू से करके चलोगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ पे पहले अपनी बुक शेल्फ के पीछे लगा के रखती थी, बट अब तो मैंने हटा दिया है। बट अगर तुम मेरी पुराने वाले वीडियोस में देखोगे यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे पेपर्स लगे थे जहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिख रखे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट जिनके पास इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो नेशनल इनकम के हो, बहुत सारे इंडियन इको में इतने सारे ईयर्स थे टू रिमेंबर कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, हॉर्टिकल्चर कब आया, ये डेट वो डेट, तो वो सारी डेट्स तुम एक जगह लिख सकते हो एंड तुम्हें एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो तुम ये वाली ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट प्लीज़ डोंट टेक ज़्यादा स्ट्रेस। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 12th है या बोर्ड्स है या बहुत मुश्किल होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे वही पेपर में आने वाला है जो तुम पढ़ने वाले हो। सो प्लीज़ हैव कॉन्फिडेंस अब खुद के ऊपर एंड स्टडी वेल, यू विल डू वेल। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्तों का भी भला हो जाए देन यू कैन शेयर दिस वीडियो एज वेल। एंड बिफोर शेयरिंग प्लीज मेक श्योर यू ड्रॉप अ कॉमेंट डाउन बिलो बिकॉज आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स। एंड अंटिल देन बाय। फिजिक्स वाला के बैचेस चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे बैचेस हैं। सो बाय।